ਆਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਪਾਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ। 64 ਇੰਚ ਘੋੜੀ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 64 ਪਲੱਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਲਾਜਵਾਬ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਧੌਣ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ, ਇਹਦਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆਏ ਆ, ਬਿਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਬਲੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਸ਼ੀਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲ ਰਤਨ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਆ ਕੁਝ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸੀਮਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ 31000 ਚ ਮਿਲ ਜੂ ਤੇ ਦੋ ਸੂਈਆਂ 51000 ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਭਿੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ, ਜਗਦੀਪ ਮਾਂਗਟ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਖੋਖਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ, ਬਿੱਟੂ ਮਨੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਨਸੀਆ, ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਕਿੰਗਰਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਮੂਸੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ, ਕਰਮਾ ਬਰਾੜ। ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਜਣੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟਾਲੀਅਨ ਘੋੜਾ ਮਾਰਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਈ ਰਵੀ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਲੀਅਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, फिर करते हैं गलबात। भाई जी सब तो पहला हम तो खास स्वागत है जी सारे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में। जो आपके श्रोता हैं उनको भी हमारे दिल्ली की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्ते है जी। आपका स्वागत है, आपके व्यूवर्स का स्वागत है जी। रवि भाई बहुत बहुत पहले आपका धन्यवाद कि पंजाब से मैं हरियाणा भी जाता हूँ, सरसा तक आता हूँ, उधर से मैं पदमपुर एरिया जो 21 तक भी राजस्थान में शूट करता हूँ। अगर दिल्ली में पहली बार आए हैं तो आपने मौका दिया है, इस करके ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत धन्यवाद है। नहीं मौका तो भगवान देता है सबको, परमात्मा देता है मौका जी। वो तो क्या होता है जब मुकद्दर होता है तभी आदमी किसी के पास पहुंचता है। हम भी बड़े दिनों से ट्राई कर रहे थे कि आप तक पहुंचे, आपसे अपना घोड़ा शूट करवाएं जी। लेकिन जब हमने घोड़ा लिया था तो उस समय घोड़े की कंडीशन खराब थी। ओके। तो हमारे को घोड़े को तैयार करने में 4-5 महीने लगे जी। तो हम तो आपसे ज़्यादा हम बेसब्री से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे कि आप लोग आएँ और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप घोड़े को प्रमोट करें। अच्छा दोस्तों, एक गल मैं तुहानू होर कहनी चाहुंदा, ये गल मैं उत्तों नहीं कह रहा, उतले मन तो नहीं कह रहा, किते फर लो ना समझ लिओ भी जिन्ना चंगा इन्हां दा घोड़ा है ना ते उन्ने ही चंगे इंसान ने बाई रवि जी होनी। ते तुहाडा दिल्ली दे नेड़ तेड़ किते गेड़ा वजे ते बाई नूं मिल के जरूर जाए। लोकेशन भी तुहानू दस देनी है ते जे तुसीं घोड़ियां मेट करवाउणीਆਂ ते ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਟੱਡ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਰਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂ? ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਵੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਜਣੋ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ अच्छा भाई रवि, जे मैं बात करूं कि शौक की, कितना पुराना हो गया शौक, तो इस लाइन में कैसे आए?
इस लाइन में एक्चुअल में हम 2018 में पुष्कर मेला घूमने गए थे जी। उससे पहले कोई साल भर पहले जैसे आप जैसे लोग हैं जो घोड़ों को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और 2-4 पुराने चैनल जो शायद काम भी छोड़ के चले गए जी भाई। तब घोड़ों की वीडियो देखते थे जी। तो ये पुष्कर का मेला भरा था 2018 में जी। तब मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया था जी। तो वहाँ पुष्कर जाने का एक ये था कि वहाँ एक ब्रह्मा के उसमें कुंड में स्नान भी करते हैं और वो मेला भी बड़ा मेला भरता है वो बिल्कुल, मेरे बेशक। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला मेरी नॉलेज में वही भरता है पुष्कर जी। तो वो मेला देखने गए थे तो मेले में फिर घोड़े देखे घोड़े देखते देखते तो मैंने अपनी लाइफ का जो अगर सबसे खूबसूरत घोड़ा जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो था राजकेसरी। वाह जी वाह। जी। मैं 2 दिन उस मेले में रहा हूँ लगभग जी। 2 दिन में मैंने कम से कम भी नहीं तो उस घोड़े को 20 बारी जाके देखा होगा। जी। क्या उसकी ब्यूटी थी क्या उसकी नेक थी क्या उसकी लेंथ थी हमें तो कुछ नॉलेज होती नहीं थी उस समय घोड़ा क्या होता है अब तो कुछ समझ में आने लगी हैं चीज़ें जी। लेकिन उस समय वो उस घोड़े ने जो अट्रैक्ट करा वाह जी। वो उस घोड़े की वजह से ही आप समझ लो कि मैं इस लाइन में आया फिर। जी। कितना टाइम हो गया रवि भाई? मैंने जी पहली परचेज जो मेरी थी मैंने एक घोड़ी खरीदी थी वो आज से 2 साल पहले ये जो पिछला अगस्त गया ये अगस्त गया इससे पिछले अगस्त में मैंने परचेज करी थी जगरांव मंडी से। जी। उससे पहले परिवार में भी रवि भाई? नहीं कभी नहीं परिवार में किसी ने घोड़े नहीं रखे। हाँ हमारे दादाजी परदादाजी रखते थे उस समय तो कोई साधन नहीं होते थे बसें वसें नहीं होती थी तो वो होता था जी। तो वो भी हमने अपनी आंखों से कभी देखे नहीं सुने ही है। जी खून में आ जाता है रवि भाई घोड़ों का जो शौक है ना। अगर आपके जैसे हम बात करते हैं भी घोड़ा यार जी घोड़ा ऐसे नहीं सुबह इस घोड़ी पे छोड़ा था ऐसी ब्रीड नहीं आई ये तो अपने दादा के सूप या ये तो अपने दादा परदादा पे ले जाता है ब्रीड। तो ये घोड़ों का जो अपना भी शौक है ना जो अपने परदादा को होगा या दादा को होगा तो हमारे खून में भी ऑटोमेटिक आ गया है ना। तो बहुत अच्छी बात है मेरे को लगता है। तो आजकल कैसे लग रहा है फिर फीलिंग आ रही है वो घोड़ों वाली? नहीं पूरी फीलिंग आ रही है पंजाबी च कह दी भी स्वाद आ रहा स्वाद आ रहा ਵਧੀਆ स्वाद आ रहा सवेरे उठ के सब तो पहला काम ही मैं खरखरा मारदा घोड़े जी। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰਖਰਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਖਰਖਰਾ ਖੁਰਖਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 9-10 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਘਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ 3-4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਰੂਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 6 ਵਜੇ अपना काम रेगुलर चलता है करते हैं अपना फिर। अच्छा इस टाइम रवि भाई कितने देवते हैं अपने? मेरे पास इस समय टोटल छोटे बड़े सब मिला के 14 के आसपास मेरे पास हैं जी। जिसमें से मेरे 6-7 जानवर सिरसा खड़े हैं जी। अपने छोटे भाई हैं परम शेरगिल जी शेरगिल नकोड़े वाले जी। उनके यहाँ मेरी मतलब तकरीबन कोई 5-6 घोड़ियाँ खड़ी हैं जी। और एक घोड़ा है 2 कोल्ट है वहाँ पे जी। अच्छी कलेक्शन कर ली अच्छी। हाँ उनकी बड़ी हेल्प है मेरे को जी। उन्होंने जो पशु दिलाए मेरे को सारे अच्छे पशु। परम भाई भी बहुत अच्छे इंसान नहीं बहुत बढ़िया जी। ਅੱਛਾ ਬਈ ਹੁਣ ਆ ਜੀਏ ਆਪਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਧੱਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ जी ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲਾइन ਬਾਰੇ जानकारी दीजिए। देखो जी इसका घोड़े का आज के दिन जो घोड़े का नाम है शाहजहां है। शाहजहां। पहले इसका नाम होता था बेताब। बेताब ओके। ये गैरी गिल भाई साहब के पास था ये जी। जब ये 10 महीने का बच्चा था जब गैरी गिल भाई साहब ने ये दीपक शर्मा को सेल किया था 51 लाख रुपए का। वाह जी वाह जी। जिसका कि वो ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे भी बोल चुके हैं जी कि मैंने इतने का ये बच्चा उस समय तकरीबन 10 महीने का था आज ये 4.5 साल का है। उस टाइम का ये सबसे महंगा कोल्ट बिका था जी। हाँ। इंडिया में सबसे महंगा कोल्ट। इससे महंगा कोल्ट कोई नहीं है बच्चा। हाँ। अच्छा भाई इस रवि भाई ये घोड़े दा बाप कौन है जी ते लाइन केड़ी है? ये घोड़ा है देवली लाइन का जी। इसका जो सायर है वो पार्थ घोड़ा है जो जुगनू गांधी जी के पास था अब रिलायंस में चला। पार्थ दा ये पोता गया? पार्थ का बेटा है। बेटा है पोती पंजाबी में हाँ, पुत हाँ सॉरी जी ठीक है जी। और प्रभात का ये पोतरा है। पोतरा है ठीक है। और मदर साइड से जो इसकी माँ है उसका नाम है सीरत जी। वो गैरी गिल भाई साहब के पास थी शायद अब उन्होंने सेल कर दी मैं वो कंफर्म कौन सी लाइन की घोड़ी? वो आलीशान की डायरेक्ट थी। ओके। और आलीशान हो गया इसका नाना जी। और जो इसकी दादी की साइड जो बनती है वो बनती है अपना वनराज करके एक है जी घोड़ा उसकी है वो वनराज। वनराज जी।
यानी कि आलीशान लाइन भी धाकड़ है, हाँ। स्टार है, सुपरस्टार है, और उधर से प्रभात और वो भी। हाँ, वो क्या हुआ कि एक अपने मोगे के पास में एक मास्टर जी हैं जी मास्टर जी के नाम से फेमस हैं। जी एक बारी मेरे को भी उनके वहाँ पे फार्म पे जाने का मौका मिला था, जी तो मैंने उनसे पूछा था कि ब्रीडिंग में क्या होना चाहिए, जी हम ब्रीडिंग करें तो हमें किन चीज़ों का। जी मैंने कहा गर्दन के बारे में तो सब बता देते, छोटी गर्दन तो बड़ी गर्दन वाला घोड़ा छोड़ दो, जी बड़े कान तो छोटे कान वाला घोड़ा छोड़ दो। जी तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, बोले रवि जी किसी भी ब्रीड में जब तक आलीशान लाइन का तड़का नहीं लगेगा ब्यूटी नहीं आएगी। वाह जी वाह जी। वो बहुत बंदे उनको मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं 30-35 साल हो गए हाँ। मास्टर जी को। तो अब क्या है कि ये जो घोड़ा है इसमें आलीशान लाइन का तड़का है। जी तो अभी आप इसके कान देखो कितने छोटे और कितने बढ़िया कान है, कुंडीदार जी कान है। जी तो ये है कि अब ये 5-6 अच्छी लाइनों का मिश्रण है। जी तो ये अब हमारे पास भी इसके रिजल्ट आए हैं, जी बहुत टॉप के बच्चे देती है। मैं आपको फोटो दे दूंगा, आप डाल देना। ਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਮੱਥੇ ਬਲੇਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ बहुत ਵੀ ਬਾਈ ਆ ਰਿਹਾ। ब्यूटीफुल ब्लेज आ रहे हैं। और ਹੋਰ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਾਰਕਿੰग ਆ ਰਹੀ है? पैरों में तकरीबन 2 पैर 3 पैर तो सभी के सफ़ेद हैं, बस एक बच्चा है मेरे ख्याल से अपना रोपड़ के पास में कश्मीर सिंह जी है, जी उनके पास एक बच्चा, मैं फोटो दूंगा आपको डालना, जी। उसके एक बस टिक्का और मेरे ख्याल 1 या 2 पैर उसके पीछे से सफ़ेद है, ओके। बाकी सब जगह मार्किंग बड़ी टॉप की है। अच्छा कितने बच्चे आ गए जी रवि जी इनके? बच्चे तो सर पता नहीं मेरे को कितने आ गए, लेकिन हमारे पास 3-4 बच्चों की फोटो अवेलेबल है। ओके जिस तक आप पहुंच कर चुके हो। हाँ, जी अच्छा भाई हुणे दी उम्र ते हाइट भी दस दी है जी, उम्र कितनी होगी? उम्र इसकी होगी जी, ये 20 मई को 4 साल कंप्लीट करे हैं। इस साल इसने 20 मई को 4 साल कंप्लीट करे, 5 महीने ऊपर हो गए, 4 साल 5 महीने 6 महीने का है ये। जी और हाइट इसकी 64 है, वाटर स्केल से। 64 प्लस वाटर स्केल ਜੀ से। ਵਾਟਰ ਸਕੇਲ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਸੱਜਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਰਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਬਲੇਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਬਲੇਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ, हाँ जी, कई बार तो हो जाता है ना टेढ़ा आ गया या तिरछा आ गया, है ना, तो इसका मत्थे का ब्लेज बहुत सीधा है। बहुत अच्छा ब्लेज आ रहा है। जी हाँ, तो पिठ पुड़ के बच्चे के और body बच्चे structure कैसा है? बच्चे मैंने आपको फोटो दी है, आप डालना ना, लोग खुद बताएंगे कैसे खुद बच्चे हैं। बताएंगे। हाँ। ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਈ ਰਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਬਾਈ ਆਇਆ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲ। जी हाँ नहीं, मैं तो वैसे तो आप लगा लो 18 से कर रहे हैं, जी सीखा, R&D करी, सब कुछ सीखा। जी इन्वेस्टमेंट मेरी तकरीबन 2.25 साल पहले से मैंने ਸਵਾ शुरू 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣੋ, ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਰਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ये अपनी लोकेशन है दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है, बड़ी मशहूर जगह है नजफगढ़। नजफगढ़ ये बहादुरगढ़ रोहतक की तरफ से आते हैं, तो नजफगढ़ जैसे ही आप दिल्ली में एंटर करते हो बहादुरगढ़ की तरफ से, तो पहले नजफगढ़ आता है। जी ये नजफगढ़ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे एयरपोर्ट की तरफ है। जी और एक हमारा यहाँ पे BSF का कैंप है बड़ा फेमस, छावला BSF कैंप। दिल्ली में छावला में BSF का कैंप है, जी जहाँ पे जो रेसलर्स और बॉक्सर्स वगैरह सब वहीं ट्रेनिंग करते हैं। जी वहाँ से ये 2 किलोमीटर है हमारा, और ये गांव का नाम है इसका कांगन हेड़ी। कांगन हेडी कांगन हेड़ी विलेज। जी। बाकी जिस बंदे ने आपके पास आना है, आपका नंबर चल रहा है जी, हाँ जी, आप लोकेशन डाल मैं ਦਿਓ, लोकेशन ਮੇਰੇ डाल दूँ, ਕੋਲ आपको डाली जैसे। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦਈਏ ਵੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। फीस तो क्या है भाई साहब, फीस मैंने इसकी रखी हुई है 51,000 रुपये, जी लेकिन उस 51,000 के साथ में हमारी एक गारंटी है जी कि जब आप हमारे पास घोड़ी भेजोगे जी तो घोड़ी आपको बिल्कुल 100% कन्फर्म होगी कि रुक गई है, आपकी भाषा में ठहर गई है या कंसीव हो गई है, जी तब हम देंगे। आप इस 51,000 रुपये में हम आपको क्या दे रहे हैं, 51,000 रुपये फीस हमने आपसे ले ली, जी एक तरफ का टेम्पू का किराया हम पे करेंगे। वाह जी वाह। जी मान लो पंजाब से आती है घोड़ी, जी एक तरफ का 9,000 रुपये किराया लगता है, फिर जी। जाने का 9 लगता है, एक साइड का हम देंगे। जी मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे गुजरात से आए, जी चाहे अहमदाबाद से जहाँ आए, से भी पूरे इंडिया से ऑल ओवर इंडिया, चाहे असम से आए, जी चाहे हमें नुकसान हो, वाह जी वाह। जी लेकिन जो हमारी कमिटमेंट है जी ये है कि एक तरफ का टेम्पू का किराया हम देंगे। जी उसके बाद में हम जब भी घोड़ा छुड़वाते हैं, हम डॉक्टर से घोड़ी चेक करवा के छुड़वाते हैं। हमारे नज़दीक में डॉक्टर है, डॉक्टर सुमित हैं, सुमित ढिंगरा, जी
वो हमसे 3,000 रुपये घोड़ी चेक करने के लेते हैं, और वो सोनोग्राफी से चेक करते हैं घोड़ी को। ओके। और वो आपको एग का साइज बता देंगे कि अब मेरे से, जैसे मैंने 3-4 घोड़ियाँ पहले वैसे भरवाई तो खाली निकल गई जी। जब उनके थ्रू मैं गया हूँ तो उन्होंने बोला कि जैसे परसों घोड़ा छोड़ना तो हमने परसों घोड़ा छोड़ा, उन्होंने बोला कल घोड़ा छोड़ना तो हमने कल घोड़ा छोड़वाया, तो वो घोड़ियाँ सारी कंसीव गब्बन हो गई। जी। तो उसमें क्या है कि जब घोड़ी आएगी तब हम उसको चेक कराएंगे जी। टाइम से छोड़ेंगे, उसके बाद में हम उसको 21 दिन के बाद में फिर घोड़ी चेक कराएंगे। अगर घोड़ी कंसीव हो गई तो हम आपकी घोड़ी भेज देंगे जी। अगर कंसीव नहीं होती है तो हम दोबारा घोड़ा छोड़ेंगे उसके ऊपर। अच्छा, चेक पास करके देंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 1.5-2 महीने भी लगेंगे। और उस इसमें भी एक बात है कि जैसे कि वो 6,000 रुपये हमसे 2 बारी घोड़ी चार्ज करने के लेंगे, वो भी हम चार्ज नहीं करेंगे। ओके। वो भी हम जो घोड़ी वाले बंदे तो ਤੁਸੀਂ कोई पैसा नहीं लेना, 51 जी सारा कुछ है, ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। और तीजी गल होर, जी, तीजी गल ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਸਟੇਬਲ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। वाह जी वाह। एक नवा पैसा चार्ज नहीं करना अपना जी। क्योंकि मैं बताता हूँ जैसे ये बातें मेरे दिमाग में कैसे आई, क्यों आई, क्योंकि हर बात का कोई ना कोई रीज़न होता है बोलने का। बिल्कुल। मैंने 2-3 जगह अपनी घोड़ियाँ भरवाई जी, घोड़ियाँ खाली चली गई, कहीं डॉक्टर की वजह से कि डॉक्टर की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं उनको नहीं कहता, वापस भेजी, उन्होंने घोड़ियाँ भरवाई। जी। लेकिन क्या है कि ये भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इतना टाइम निकालना, घोड़ी फिर आ गई, फिर महीना वेट करा, फिर घोड़ी हीट पे आ गई, तो आदमी का समय ख़राब होता है, मन टूटता है। तो हम ये कह रहे हैं कि 51,000 रुपये में फुल पैकेज है, आपको सिर्फ 51,000 रुपये पे करने हैं, उसके अलावा आपको कुछ पे नहीं करना जी। आपकी घोड़ी कंसीव होगी, आपकी घोड़ी कंसीव करा के भेजें। ऐसा पैकेज मैंने पहली बार सुना है रवि भाई, ऐसा पैकेज हाँ कोई भाई देते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं, एक 2 चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ आपको इसके साथ में। क्योंकि देखो बछेरा अगर आ जाता है तो बेचना बहुत भारी हो जाता है किसान के लिए भी कह लो, या व्यापारी के लिए भी कह लो, या किसी के लिए भी कह लो जी। अगर किसी की घोड़ी ने हमारे घोड़े से बछेरा दिया तो अगली बार उस पर हम घोड़ा फ्री छोड़ेंगे। वाह जी वाह। ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੱਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਛਾਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਸਵਾਦ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਓ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਬਾਈ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ 51,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਅਲਫਾ ਇਹ ਸਭ ਲਾ ਲੈਣਾਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਘੋੜਿਆਂ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੱਡਾ ਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। सत श्रीकाल जी। कैमो? बढ़िया जी। नींद तो नहीं आ गई थी? नहीं जी, बढ़िया, मजा आ रहा था। भाई बाइक आपके पास भी नुकरे घोड़े हैं, आपने बताया मेरे को। बाइक का घोड़ा कैसे लगता है? मैं अनमोल की बात करूं, अनमोल क्या देखता है घोड़े में? जी, घोड़ा अपने आप में तो स्टार है जी। हाँ जी। अभी तक इन्होंने छुपा रखा था इसको है। हाँ, खुल के सामने मैदान में नहीं आए, अभी नहीं आए, अब आए। जिवें पंजाबी कह देंगे पट्टा नूं तेल ला के थापी हुण मारी है। तो अब इन्होंने थापी मारी है जी। मैं तो उनको बहुत पहले से कह रहा था, मैं कहा भाई साहब आपके पास बहुत अच्छा नगीना है जी, मतलब कि घोड़े का कोई मेरे हिसाब से कोई तोड़ नहीं है जी। हाँ, बहुत अच्छा है, बॉडी से ट्रैक हर चीज A1 A क्लास है घोड़े में। हाँ। तो भाई रवि भाई, शो में डालने के बारे में सोचा है या पहले डाला? नहीं, पहले एक बार ये मेरे क्या फरीदकोट शो में डला था, उसमें 5वां-6वां नंबर था इसका जी। क्या होता है ना, देखो जी, हमें तो लग रहा है हमारा घोड़ा ही टॉप है, हमारे घोड़े से भी ऊपर घोड़े हैं जी जी जी। और घोड़ा लाइन में मैं आपको एक बात बता दूं, आपका घोड़ा कितना भी टॉप का है, अगर वो शो में जाके एक बार पिट गया तो उसकी कहानी खत्म हो जाती है घोड़े की जी, क्योंकि भेड़ चाल है शो। हाँ जी रवि भाई। तो इसमें क्या है कि एंड घोड़े का एंड क्या है, रिजल्ट है। मैं शो में लगा लूँ, वो पैदा क्या कर रहा है, फर्स्ट आ जाए, पैदा कुछ कर ही नहीं रहा। मैं शो में ना लेके जाऊं जी, पैदा करे। देखो आखिर में क्या है, घोड़ा कितने शो जीतता वो मैंने ऐसे घोड़े दिखा दूं तो 12-12, 14-14 शो जीते में 20-20, 30 लाख रुपए में बिक जाते हैं जी। जो प्रोड्यूस करने वाले घोड़े हैं, जैसे गैरी भाई साहब के पास घोड़ा है दरोना, मैंने सुना 5-6 करोड़ रुपए का बिका है वो जी। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कौन सा शो में लगाया, ठीक है।
तो बड़े अच्छे घोड़े हैं। मेरे समझ में आज तक जो 4-5 साल लगा के आया है कि घोड़ा मार्केट में प्रोड्यूस क्या कर रहा है बड़ा होने से। अब मेरे पास में एक घोड़ी थी महुआ कलर की जी, वो विजयराज घोड़े से मिलके आई थी, ठीक है जी, उसने बछेरा दिया, मत्थे फूल 3 पैर सफ़ेद, जी, ठीक है, उसमें कोई ब्यूटी नहीं आई। आज वो मेरा जो वो बछेरा है मेरे का 19-20 महीने का हो गया जी, उसका 31 जनवरी का जन्म था, पिछले साल का। जी, 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 तो अब मैंने वो छोड़ रखा किसी के पास में, अपने परम के पास छोड़ रखा, मैं क्या इसको बेच दे। अब वो नहीं आ रहा बिकने में। मैं तो बल्कि आपके चैनल के माध्यम से 2 बातें और कहना चाहूँगा। जी, जरूर भाई। अगर किसी को शौक है, अगर किसी को फ्री में बच्चा चाहिए तो बच्चा हम फ्री में दे देंगे उसी को जो आपके चैनल पे वीडियो देख के आएगा, वीडियो देख के और कमेंट करेगा उसको देंगे। ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬਾਈ ਉਹ विजयराज जो 69 इंच का घोड़ा है, 69 का जो विजयराज ये बाकरपुर खड़ा था घोड़ा, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। उसका बच्चा है। ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਕਿ ਜਾਂ वो डिलीट होगी, मैं डलवा दूंगा आपको, मंगा दूंगा। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣੋ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਬਾਈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਛਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ मैसेज क्या देना, मैं तो बताऊं जो नए लोग आ रहे हैं, जैसे मैं नया गया था, मैं बताता हूं आपको, आपने बात पूछी है तो जी, जब कोई नया आदमी आता है ना किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में, जैसे मेरा रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, मेरे को 25-30 साल हो गए काम करते हुए, मेरी 53-54 साल उम्र है। कोई भी नया आदमी आता है ना जब, तो वो सोचता है कि मैं किसी का हाथ पकड़ूं और मुझे वो सक्सेस दिलाए, लेकिन घोड़ा लाइन में ये नहीं है। ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਅੱਧ 'ਚ ਰੋਕਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਸੀਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ 31 ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਈ 51,000 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ठीक है। अब जैसे मैं भी सेल परचेज का काम करता हूँ जी, मैं क्या कहता हूँ, आप मेरे से ये घोड़ी इतने की लेके जाओ, मान लो मेरे पास अभी एक घोड़ी खड़ी है जी, वो मैंने तकरीबन 7.5 लाख रुपए की खरीदी थी जी, अपना देवेंद्र प्रधान जी से, देवली लाइन की घोड़ी है वो जी, ठीक है। उसको लेने का मेरा एक मकसद था कि उसके पेट में उस समय जो बच्चा था, बच्ची थी, जो अब तो खैर बच्ची है जी, वो अपने रफेल घोड़े की थी, काले कांटे का जो बेटा है जी, ठीक है। मेरा वो मकसद पूरा हो गया। उसने वो बच्ची जो है बड़ी टॉप की बच्ची दी है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। जी, 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 बहुत ही जबरदस्त बच्ची दी है। मतलब आप ये समझ लो कि रफेल घोड़ा है ना, जैसे घोड़ों में जी, अगर वो जब बड़ी होएगी ना, रफेल को और उसको सामने आमने सामने खड़े कर देना, कॉपी है बिल्कुल, उसकी ट्रू कॉपी है जी, ठीक है। अब वो मैं घोड़ी देना चाहता हूँ। जी। देखो मैं तो वो नहीं कहता जी कर लांगे, फोन पे कर लांगे इतना, मैं वो घोड़ी 5 लाख रुपए में दे दूंगा जी, ठीक है। 7.5 लाख की मैंने ली थी। जिसको पूछना हो जी, वो देवेंद्र प्रधान जी से पूछ सकता है जी, आज अगर कोई मेरे से 5 लाख रुपए की वो घोड़ी लेके जाता है, जी, देवली लाइन की घोड़ी है, जो मेरे पास घोड़ा है उसकी वो ब्लड लाइन के हिसाब से भैनी लगती है जी, इसलिए मैं अपने वाला घोड़ा उस पर नहीं छोड़ रहा हूँ हाँ जी, ठीक बहुत है। अच्छी बात है जी, ठीक है। उस घोड़ी पे कोई अच्छा घोड़ा छोड़ो, अच्छा रिजल्ट देगी, रिजल्ट मेरे सामने खड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ मैं आपको बेचूंगा, जी, मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं 5 लाख रुपए की दूंगा और अगर 2 महीने बाद उस आदमी को लगता है कि मेरे साथ कोई ठगी हो गई है, मेरे को महंगी मिल गई है, 2 महीने बाद 4 महीने बाद मेरे पास वापस छोड़ जाए, हाँ, तो बड़ी गारंटी हो सकती है। 25% मैं काटूंगा उसमें से। जी, तो जायज है बिल्कुल, कोई इसमें 25% लेस पे मुझे दे जाओ जी, वापस दे जाओ। आपने मैटिंग कराई है, उसकी मैटिंग के कोई चार्जेस आपने दिए वो भी मैं आपको दे दूंगा। वाह जी, वाह जी। तो मेरा कहने का मतलब जो चीज़ हम बेचेंगे वो अपनी गारंटी से बेचेंगे जी, मार्केट प्राइस से बेचेंगे। और देखो इसमें मार्केट में कोई प्राइस नहीं है भाई जी। जी, मैं आपको बताऊं, ये अखबार में नहीं आता कि आज सोना इतने रुपए तोड़ा है, आज पेट्रोल का ये रेट है, आज कोयले का ये रेट है। ये तो आदमी की पॉकेट और उसकी पसंद, 2 चीज़ों का मिलाप है।
उसको समझ कितनी है, वो सोचता क्या है उसके बारे में। मान लो कोई घोड़ा है जी, वो 1 करोड़ रुपए का बिक रहा है जी, और वो वर्थ भी रखता है 1 करोड़ की, और मुझे पसंद भी है, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं नहीं ले पाऊंगा। जी, मान लो कोई घोड़ा 1 करोड़ का है, वर्थ भी रखता है और मेरे पास पैसे भी हैं, तो मैं ले लूंगा। जी। अब कोई आके बोले यार भाई ये तूने महंगा ले लिया, 70-70 का आना चाहिए था, हाँ, तो इसमें कोई वो नहीं है। घूमो फिरो, घूम फिर के चीज़ लो, 2-4 लोगों से क्रॉस चेक भी करो। बिल्कुल। इस लाइन में झूठ बोलते हैं। जी। मेरे पास एक अबलग घोड़ी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जी, मेरे को वो शौर्य घोड़े की कह के दी थी। जी, अब इस मार्केट में नए लोगों को एक बात और बताता हूँ कि झूठ कैसे चलता है। जी, वो आपको ऐसे घोड़े की बताएंगे जी, जिस घोड़े का डीएनए नहीं हो रखा होगा। ये जी उसकी है, ग्रेट गैम्बलर की है, ये जी उसकी है, ओके। ये जी उसकी है, डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है, मारे जाओ टकरे, ठीक है। जी, अब मेरे पास जितनी घोड़ियां खड़ी हैं मैंने सबका डीएनए करा रखा है, सब अननोन आई हैं, अच्छा, टोटल अननोन। ओके। अच्छा, आप लाइन की उन्होंने कह के दी लाइन की, सारी अननोन है, लेकिन घोड़ियां जब आप दिखाओगे जी, तो लाइन से ऊपर की घोड़ियां हैं। वाह जी, वाह जी, ऐसी घोड़ियां लाइन में भी पैदा नहीं होती हैं। जी, अब मेरे पास एक खड़ी है, नीली घोड़ी है, जी, ये इसकी है, क्या नाम है, ये अली किरल का घोड़ा हुआ बड़ा फेमस, जी, उसकी वो पोती लगती है। जी, और मदर साइड से जो है वो मज्जू के लाइन से है, जी, किसी बड़े घोड़े एडम या उसकी किसकी वो बच्ची है, जी, ठीक है। वो ब्यूटी बताती है कि मैं हूँ, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अभी मेरे पास लाल रतन का बच्चा खड़ा है, हाँ, कल वो 15 महीने का हुआ, 26 तारीख को, जी, ठीक है। अब वो लाल रतन का डीएनए है। मेरे पास जो घोड़ी है काली, एक रंग ब्लैक घोड़ी है वो, ठीक है जी, उसका मैंने डीएनए करा लिया, घोड़ी का डीएनए हो गया, लाल रतन का डीएनए ऑलरेडी है। मैं लिख के दूंगा उसको, जो भी मैंने खैर वो बेचना तो है ही नहीं किसी भी कीमत पे। मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं लिख के दूंगा ये इसका फादर साइड है, ये इसकी मदर साइड है, जी, पक्का एग्रीमेंट बना के दूंगा। जी, कोई भी जानवर मैं दूंगा बिल्कुल सच बोल के दूंगा। नहीं समझ में आता 2 महीने बाद वापस कर दो, 25% पैसे काट के जी, आप ले जाओ। ਲਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਆ ਬਾਈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਆ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਵਾਂਗੇ 25% ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਵੀ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਮਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਰਵੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਟਿਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਰਵੀ ਬਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ? नहीं, दिल्ली में आज तक कभी शो नहीं हुआ, जी। और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जी, अभी दिल्ली में हम लोगों ने अभी पिछले 13 तारीख को एक दिल्ली एनसीआर करके एक हमने हॉर्स क्लब बनाया है, ओके जी, और उसके अंदर तकरीबन दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से तकरीबन 40 के आसपास घोड़ा प्रेमी या घोड़ा जो रखते हैं वो जुड़ गए हैं। जी, और अभी हम उसको रजिस्टर्ड करा रहे हैं संस्था को। उसका रेडियस जो है वो तकरीबन 200-250 किलोमीटर तक है दिल्ली के। ओके, उसमें कंडीशन ये है कि या तो आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए, दिल्ली एनसीआर के, जी, या दिल्ली एनसीआर में आपका फार्म होना चाहिए। ओके, मान लो कोई पंजाब रहता है, जी, सिरसा रहता है और उसका फार्म यहाँ है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। जी, कोई दिल्ली का निवासी है और वो दिल्ली से बाहर रहता है, घोड़े उसने बाहर पाले, उसको भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी एक गुप्ता जी हैं आपके अमृतसर से, जी, वो गुप्ता जी हैं, अब उनका फार्म वहाँ पे अमृतसर में, जी, ठीक है, उनको हमने ज्वाइन कराया है। जी, हमारे साथ मेरठ से, इधर से मुजफ्फरनगर से सद्दाम राणा जी हैं, मेरठ से ये जतिन सरीन जी जुड़े हैं, एसएस बेट वाले, जी, दिल्ली के भी बहुत अच्छे नामी ग्रामी लोग, पैसे वाले लोग, वो भी जुड़े हैं। जी, हमें तो इतना आइडिया नहीं था कि मतलब इतने लोग जुड़ जाएंगे। जी, हमारे तो फिर मीटिंग हुई हमारी यहाँ पे रेडिसन होटल में, दिल्ली में, जी, पश्चिम बिहार में रेडिसन होटल है, उसके अंदर हमारी मीटिंग हुई। जी, तो वहाँ ये डिसाइड हुआ कि अभी रोक लो लोगों को, रोक लो लोगों को, क्योंकि बहुत स्पीड से लोग आ रहे हैं। तो उसमें फिर हमारी मीटिंग में अब ये डिसाइड हुआ भाई, जो भी आदमी अब नया ज्वाइन करेगा जी, उसकी गारंटी 2 मेंबर लेंगे, कि वो ग्रुप में आके कोई बदतमीजी ना करे, जी, कोई ट्रेड चलाने की कोशिश ना करे, बिल्कुल, कोई उल्टी सीधी काम करने की कोशिश ना करे। तो 2 लोगों की गारंटी के साथ वो ग्रुप के अंदर आएगा। अगर वो कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा तो उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। जी, तो अभी तो काफ़ी लोग और हैं, जुड़ रहे हैं, जी, तो फिर देखते हैं फिर आगे
6 महीने में, साल में, 2 साल में जी दिल्ली में शो तो कराना है, हमने कोशिश कर रहे हैं। जी एक बहुत अच्छा अच्छी शो बात है, नए लोगों को जुड़ने का एक साधन है। क्योंकि रही भाई ये बहुत बढ़िया बात है, आप इतना उद्यम कर रहे हो तो क्योंकि या तो जो नए लोग हैं वो मीडिया से जुड़ते हैं, या मंडी से जुड़ते हैं, या शो में आते हैं, उनको शौक पड़ता है, तो वो एक बढ़िया बात है कि जितने भी अच्छा साफ सुथरा काम कर रहे हैं, तो बढ़िया बात है। मैं आपको बताता हूँ जी आज से 4-5 साल पहले घोड़ों की इतनी कीमत नहीं थी, रेयर घोड़े थे जी जो बिक गए महंगे। जी अब सोशल मीडिया की वजह से ही घोड़ा इंडस्ट्री खड़ी हुई है। जी कोई न्यूज़ चैनल तो दिखाता नहीं कि मारवाड़ी घोड़ा कौन सा है, ना कोई जी न्यूज़ दिखा रहा, ना एनडीटीवी दिखा रहा, कोई घोड़ों से कोई लेना देना नहीं किसी को। जी ये आप लोगों की अथक मेहनत, अथक प्रयास, दिन रात भागना। बस आप तो ऐसी ऐसी जगह जाके घोड़े शूट कराते हो जिनके यहाँ सोने की जगह नहीं, आप अपनी गाड़ी में सो के भी टाइम पास करते हो। करते हैं भाई। हमारी भी कई मेहनत यूट्यूबरों से बात होती है, तो देखो मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है, आप लोगों को जाता है, यूट्यूब चैनल्स को जाता है। आप लोगों ने घोड़े की कीमत को बढ़ाया है। अब जैसे ये मेरे मित्र हैं प्रवीण जी, जी भाई, तो ये अपने मित्र हैं प्रवीण यादव जी। जी 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 ये हमारे पास में ही एयरपोर्ट के साथ में एक गांव पड़ता है कापासेड़ा, जी भाई, जो कि दिल्ली बॉर्डर भी लगता है हरियाणा के साथ में, गुड़गांव की तरफ से आते हैं, तो कापासेड़ा बॉर्डर ही फेमस बॉर्डर है, वहाँ रहते हैं ये। जी अब इनको इतना शौक है घोड़े का, इतना शौक है घोड़े का, संपन्न है पैसे से, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके की। बस प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास जगह नहीं है घोड़ा बांधने की। अभी अपना शौक कैसे पूरा करते हैं? अच्छा, ये अपना शौक पूरा करने के लिए दिनेश जैन जी हैं, जी उनके फार्म पे 1.5-2 महीने जाके, उनको नहीं बताते कि मैं फाइनेंशियली बहुत साउंड हूँ, जी उनके घोड़ों की सेवा करते हैं, खरखरा मारना, गोबर उठाना, सारा काम करना। जी ठीक है। फिर ये अलवर के पास कौन से महाराज जी के चले जाते हो तुम? बाबा वो जो बालकनाथ, बाबा बालकनाथ जी हैं किधर जी, उनके फार्म पे चले जाते हैं, 15-15, 20-20 दिन घोड़ों की सेवा करते रहते हैं। आपने भी देखा हुआ, सुबह से आए हुए यही लगा हुआ। मैं इसको बोला प्रवीण यार, मैं भाई को सोच रहा था कि भाई प्रवीण जी इधर मैनेजर है शायद फार्म पे। नहीं मालिक हैं ये। अच्छा, मालिक है। हाँ मालिक हैं ये, बस इनको शौक है। मैं तो लोकल समझता हूँ जी, मुझे घोड़े से बहुत प्रेम है। जहाँ भी मुझे पता चल जाता है कि यार ये इंसान ऐसा है कि मुझे घोड़ा की सेवा करने का मौका दे सकता है, मैं उन्हीं के पास पहुंच जाता हूँ। जैसे पंजाब में अपने राजा जी है भिट्टी वाला गांव से, शक्ति घोड़े वाले। हाँ, शक्ति घोड़े के मालिक है जो, जी, उनके पास भी चला जाता हूँ। वाह जी, दिनेश जैन साहब है उदयपुर, उनके पास भी चला जाता हूँ। अपने अलवर में बाबा जी है, उनके पास भी चला जाता हूँ। जो भी बंदा दिल को अच्छा लगा। हाँ, तो पैसे मैं किसी से लेता नहीं, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट पैसा नहीं है। जी, मेरी रिक्वायरमेंट है सिर्फ नॉलेज प्राप्त करना और अपना शौक पूरा करना। वाह जी, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਵੀ ਬਾਈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੱਲ 4 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ बस। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ इसी जी बात जी पे। जी 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 भाई, मैं 15 दिन दिनेश जैन साहब के यहाँ पर घोड़ों की नौकरी करने गया। जी, घोड़ों की नौकरी विदाउट पैसे, मैं पैसे नहीं ले हिसाब से कोई भी। जी, तो एक दिन मैं उसमें लीद साफ कर रहा था, ये जो अपना बना होता है ना घोड़े का कमरा, और लीद साफ करते करते मुझे इतनी ज़्यादा स्मेल आई, इतनी ज़्यादा स्मेल आई, और मैंने अपने आप से, मेरी आत्मा ने ये कहा कि कालू तू इस चीज़ के लिए बना है क्या? क्योंकि भगवान की दुआ से चटनी रोटी में कोई कमी नहीं है। जी, तो एक बार के लिए मन टूटा थोड़ा सा। फिर मैंने अपने आप से बात की कि कालू अब मान के चलिए कमरा तेरा ही है, अब बता बदबू आ रही है? तो मेरे दिल ने जवाब दिया कोई बदबू नहीं है। जी, तो इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ कि अगर घोड़े ने लात मार दी तो क्या मैं घोड़ा बांध सकता हूँ? घोड़े के पास जाने से मान मुझे बदबू आ रही है तो क्या मैं बांध सकता हूँ? वो घोड़े के कारण जो भी मुझे परेशानियां मिलेगी, क्या उनको उनके ऊपर से तैर के मैं चल सकता हूँ? तो फिर मैं रखना स्टार्ट करूंगा, अन्यथा तो फिर मैं दोस्तों के साथ मिलके, आप जैसे के साथ मिलके अपना शौक। शुक्र है भाई, मालक ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ भाई। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਨਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਓ ਰਵੀ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬੰਦਾ भेजो साडे को। नहीं, अगर कोई घोड़े वाला समस्या में होगा, अगर इसको आधी रात को फोन करेगा तो ये उसकी मदद करने जाएगा। इसको मैं भी नहीं रोक सकता। इसको अगर ये पता लगा ना कि भाई मुझे रोकेगा तो मुझे बिना बताए चला जाएगा फोन ऑफ करके। मैं जानता हूँ इसको। और ये मैं सोशल मीडिया के द्वारा भी कह रहा हूँ, अगर कोई भी आदमी जी अगर परेशान है सर्वेंट से, जी, चाहे वो दिल ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी है, जी, मैं पैसे नहीं लूंगा, घोड़े की जाके मैं सेवा कर आऊंगा।
जितने दिन के लिए आपको मेरे को चाहिए मेरे को पहले बता देना यार भाई साहब 10 दिन के लिए आ जाओ। वैसे मेरा स्टेशनरी का काम है, होलसेल का काम है, मेरा बिजनेस है, मेरी वाइफ संभाल लेती है। हालांकि मुझे थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन मैं जब वहाँ 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए घोड़ों की सेवा करने जाऊंगा, मैं घोड़ों की नौकरी करने जा रहा हूँ, उस आदमी की नौकरी करने नहीं जा रहा, घोड़ों की सेवा करने जा रहा हूँ, घोड़ों की नौकरी करने जा रहा हूँ। तो वहाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट होगा और शायद अगर वो आदमी से मुझे कुछ सीखने को भी मिले, हो सकता हो कि वो उस लाइन में 40 साल पुराने हो, 50 साल पुराने हो, 10 साल पुराने हो, 5 साल पुराने हो, जैसा उनका तजुर्बा होगा उस हिसाब से मुझे सीखने को भी मिलेगा। जी बहुत बढ़िया गल है सज्जनों, शौक कहते होंगे ना कि और मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ अपना। जी हाँ नंबर दस दो जी। हाँ मेरा नंबर है 9811535621। मेरा परवीन नाम है, परवीन यादव, वैसे मुझे कालू कहते हैं, गाँव मेरा कापेशेड़ा है। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी आदमी मुझे अगर अपने फार्म पे बुलाना चाहता है इस वजह से कि उसको अपने जानवर को संभालने में थोड़ी परेशानी आ रही है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो मैं कोई उनसे चार्ज नहीं लूंगा, ना आने जाने का किराया लूंगा, ना वहाँ काम करने का किराया लूंगा, चाहे मैं बस से जाऊँ, चाहे मैं ट्रेन से जाऊँ, चाहे मैं चाहे मैं अपनी कार से जाऊँ। हाँ ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਬਾਈ ਨੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਈ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਈ ਨੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਵੀ मैं एक बात इसकी बात के साथ जोड़ दूं, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। कोई आदमी ये ना सोचे कि मैं 10-15 दिन अपने नौकर की सैलरी बचा के उनको बुला लूं, ये उस हिसाब से नहीं है। जी 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 गलत काम नहीं करना, अगला मदद करने को तैयार है तो वही आदमी मदद मांगना ईमानदारी से, जो ईमानदार हो, जिसको मदद की जरूरत हो। बिल्कुल फालतू में किसी का टाइम मत खराब करना कि चलो यार ये दिल्ली में बोल रहा है, चलो इसको बुला के देखते हैं आता कि नहीं आता। क्या करता है जी? वो हरकत ना करे कोई आदमी इसके ऊपर, हमारी तो ये रिक्वेस्ट है। बिल्कुल और ये अपना छोटा भाई है प्रशांत, जी भाई, इनका भी साथ में ही गांव है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर पे। जी इनके पास भी भाई ਨੂੰ ਵੀ शौक है। भाई के पास, भाई का शौक सुनोगे तो आप हिल जाओगे। हमारे पास सारे ही हिले हुए हैं, कोई भी टकाने नहीं है। ये भाई साहब तो मेरे से भी ऊपर। ये देखो इनके पास एक घोड़ी है जी, ये देव घोड़े से मिलवाने, यहाँ से दिल्ली से कितना किलोमीटर, 1400 वाह जी वाह, अच्छा गणेशपुरा चले गए, गणेशपुरा जी, गुजरात। 1400 किलोमीटर घोड़ी को लेके गया ये बंदा यहाँ से। इसे कहते हैं जनून, इसे कहते मैंने हैं जब breeding पहली बार करना। इनसे मिला था, अब जब मैं इसके पास जो बच्ची आई है उसके 27 लाख रुपए मेरे आगे लगे हैं 2-3 बारी, इसने दी नहीं। मैं कहा दे दे, मैं कहा और ले लेंगे, बड़ी घोड़ी ले ਕੋਈ ਮੁੱਲ लेंगे। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਮਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸੱਜਣੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਘੋੜੀ ਮੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਮੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਲੰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸਤਾ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ? शाहजहां। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਆਓ ਤੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜੇ ਦੇਵ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਬਾਈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਈ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਇੱਧਰ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। बस गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा सा इधर करना है, 3 किलोमीटर हमारे फार्म पे आ जाए। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ 40 ਮਿੰਟਾਂ 35 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਰੂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਫਾਰਮ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਮਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ।
सत श्री अकाल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू भाई। भगवान आपको बिजनेस दे जी। और आप दिल्ली में आए हैं, मैंने 2-4 लोगों से बात करी है, उनके फोन आ रहे हैं, आपको 2-4 शूट और भी करने पड़ेंगे। थैंक यू। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सपोर्टिंग नेचर है भाई, हर एक बंदे को सपोर्ट करते हैं भाई। तो आपने सुन ही लिया है, तो हर एक प्रकार का बंदा ही भाई से संपर्क कर लो। तो बाकी गल्लां बातां भी खुल्लियां करते हैं, सच्चियां करते हैं। तो बहुत ही जल्द अगली वीडियो लैके हाजिर होने। दिओ इजाजत, शब्बा खैर, सत श्री अकाल। थैंक यू भाई जी, धन्यवाद। ओके सज्जो, शेयर मार दो।